वर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। यानी कि हम आनंदित होकर सुंदर राग गाते हैं और हम सब समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाते हैं। यानी कि सब मिलजुल कर रहते हैं और रात दिन सभी के घर में एक ही गीत गूंजता रहता है, क्या कि हम सब लोग एक एक संसार में रहने वाले सभी एक हैं। तो राष्ट्र में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। यानी कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोग जो है वो एक होकर रहे, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों न हो। सभी धर्म भी यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, आगे बढ़े और सबके साथ न्याय हो और मानवता की रक्षा हो। यही हमारा सबका धर्म है और सब मिलजुल कर विश्व शांति यानी कि हमारे झंडे को लहराए और इसी तरह हम अपनी एकता साबित करते रहे। तो આ જે કવિતા જે છે એ આપણને બધા સાથે હળી મળીને રહેવાની શીખ આપે છે કે સંસારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા બધા દેશ છે અને ઘણી બધી જાતિઓ અલગ અલગ છે, પણ આપણે બધા જે છે ધરતી પર રહેવા વાળા તો આપણે મનુષ્ય જે છે એ બધા કેવા ગણાઈએ, એક જ છીએ। આપણે બધા જે છીએ એ ધરતી માના સંતાનો ગણાય છીએ। તો આ એટલા માટે આપણે બધાય ભાઈ ભાઈ છીએ। પછી તે કોઈ પણ જાતિના કેમ ન હોય, કોઈ પણ દેશના કેમ ન હોય, આપણે બધા એક જ છીએ। તો ભગવાન ઈશ્વરે કુદરતે આપણી સાથે ભેદભાવ નથી રાખ્યો, તો આપણે એકબીજા સાથે શા માટે ભેદભાવ રાખીએ છીએ કે જાતિ પાતિ, ઊંચ નીચ, અમીર ગરીબ, તો આવા બધા જે ભેદભાવ છે એ મિટાવવા જોઈએ અને બધા સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ। તો આ કવિતા સમજાઈ ગઈ છે બધાને? હવે કોઈને કઈ ડાઉટ છે બેટા આમાં? નો કઈ મેમ। No સમજાઈ ગયું ma'am, no બધાને? doubt. No ma'am. Yes. નો ઓકે, મેમ, નો ડાઉટ। ચાલો તો હવે આપણે લેસન નંબર 3 નું ફરીથી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ કે એમાં કોઈને ક્યાંય ન સમજાયું હોય તો સમજાઈ જાય। ઓકે, તો લેસન નંબર 3 જે છે ને એનું નામ શું છે? સમજદાર નન્હી। समझदार नहीं। સમજદાર નન્હી જે છે એ લેસન નું કેટલા નંબર નું છે? નંબર 3 નું, બરાબર છે। તો સમજદાર નન્હી, સમજદાર યાની કે ક્યા? કોઈને ખબર છે કે સમજદાર એટલે શું? જેને આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ ને કે સમજવું, સમજવું, કે જે બધું બધાની તકલીફ પણ સમજી જાય છે અને બધા સાથે હળી મળીને રહે છે અને જેનો સ્વભાવ સારો હોય, બધા સાથે હળી મળીને રહેતા હોય, બધાના કામ કરતા હોય, તો એવા લોકોને કેવું કહેવામાં આવે છે? સમજદાર કહેવામાં આવે છે કે એ લોકો જે છે એ સમજદાર છે। તો અહીંયા પણ આપણને એક એવી નાની એવી નન્હી છે ને એની વાત કરવામાં આવી છે, ને નન્હી છે ને ખૂબ જ સમજદાર છે અને એ નન્હી કોણ છે? કોઈ ગર્લ નથી, પણ એ નન્હી છે ને એ એક નાનું એવી બતક છે। તો એ બતક ની અહિયાં વાત કરવામાં આવી છે। આપણે જોઈએ છીએ કે બધાનો સ્વભાવ છે ને એ સરખો નથી હોતો, હોય છે બધાનો સ્વભાવ સરખો? નથી હોતો, બરાબર ને? હા, તો આ સમાજમાં ઘણા સારા લોકો પણ રહે છે, સારા સ્વભાવ વાળા પણ લોકો રહે છે અને જે હંમેશાને માટે સારા જ કામો કરતા હોય છે અને બીજાની ભલાઈ માટે જ વિચારતા હોય છે। અને સમાજમાં જોઈએ તો ઘણા ખરાબ સ્વભાવ વાળા લોકો પણ રહે છે, જે હંમેશા બીજાના ખરાબ જ કામ કરતા હોય અને જે કોઈનું સારું પણ જોઈ શકતા નથી અને બીજા સાથે હંમેશા खराब જ વર્તન કરતા હોય છે। तो हमें किसी भी स्थिति में किसी का भी बुरा करना चाहिए नहीं। तो આપણે શોર્ટમાં આ સ્ટોરી સમજી લેશું।
બરાબર છે કે એક નાની બતક હોય છે અને તે જે છે ઈ જ્યારે નદીની એક બાજુ આવીને જોવે છે તો એક વીછી હોય છે ને એ કાદવમાં કીચડમાં ફસાઈ જાય છે. તો એ જયારે કાદવમાં ફસાઈ જાય છે ને ત્યારે વીછી છે ને ઈ આ નન્હી ને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે નન્હી તું મને બચાવી લે ને. તો નન્હી જે છે ને એ શું કરે છે એને કાદવ માંથી બહાર કાઢે છે, કાદવ માંથી ઉપાડીને તેને સુખી જગ્યાએ મૂકી દે છે. કારણ કે વીછી જે છે ને એ સાવ નાનું હોય છે ને તમે જોયો છે ને બધા એ વીછી ને ગર્લ્સ. યસ મેમ. હા તો જે નન્હી છે ને એ શું કરે છે એ વીછીને કાદવ માંથી કાઢીને બાર સુખા સ્થાન પર એની કે જે કોરી જમીન હોય છે ને ત્યાં એને રાખી દે છે. જો અહીંયા આપણને દેખાય છે વીછી, બરાબર. યસ. આ આજે છે એ વીચી છે એ એને રિક્વેસ્ટ કરે છે હાથ જોડીને કે મને કીચડ માંથી બહાર કાઢ ને. ત્યારે નન્હી જે છે એને સુખી જગ્યાએ બહાર કાઢીને મૂકે છે. પણ વીછી તો કેવો હોય છે એની ટેવ કેવી ખરાબ ટેવ હોય છે કે બધાને ડંખ જ મારતો હોય છે. તો વીછી એ આ બતક જે છે એને વીછીને બહાર કાઢીને સુખા સ્થાન પર મૂક્યો, કોરી જગ્યા પર મૂક્યો, છતાં પણ વીછી જે છે ને એ નન્હીને ડંખ મારી દે છે. અને નન્હી જે છે એને ખુબ જ પીડા થાય છે. પછી વીછી જે છે એ વીછીને પૂછે છે નન્હી કે કેમ ભાઈ તે મને શું કરવાને ડંક માર્યો, મેં તો તારો જીવ બચાવ્યો, મેં તો તેને કીચડ માંથી બહાર કાઢ્યો. તો વીછી જે છે ને એ કેરલેસ રીતે બોલે છે કે ડંક મારના મેરા સ્વભાવ હૈ. તો નન્હી બોલતી હૈ તુમ અપની ये गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. तो बिच्छू જે છે એની વાત सुने बिना ही चला जाता है और नन्ही जो है वो अपने माँ के पास जाती है. तो उसकी माँ पूछती है बेटी तू कहाँ थी अब तक क्यों लेट हुई. तो नन्ही कहती है कि एक बिच्छू जो है वो कीचड़ में फंस गया था तो उसे बचाने में मुझे थोड़ी देर हो गई. मैंने उसकी जान तो बचाई लेकिन फिर भी माँ उसने मुझे डंक मार दिया. तो माँ बोली बिच्छू जो है वो अपनी गंदी आदत का गुलाम होता है तो उसे कितनी भी बार क्यों ना बचाए वो तुम्हें हमेशा डंक मारता रहेगा. तो नन्ही बोली माँ मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. તો થોડા દિવસ પછી વીછી જે છે ને એ પાછો એ પાણીમાં વહેવા લાગ્યો અને પાણીમાં ડૂબવા લાગે છે. તો એને વીછીને લાગ્યું કે હવે નક્કી હું મારો આજે મૃત્યુ થઈ જશે. તો નન્હી ને ફરીથી બોલાવા લાગ્યો કે નન્હી નન્હી मेरी मदद करो. तो उतनी ही देर में फटाफट से नन्ही वहां पर बिच्छू के पास आ जाती है. तो अचानक से ही नन्ही के मन में विचार आया कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी क्योंकि बिच्छू जो है वो मुझे डंक मारता है फिर भी. तो बिच्छू फिर से उसे रिक्वेस्ट करने लगा और नन्ही का मन पिघल गया. नन्ही ने सोचा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत जो है वो उसे छोड़ चुका होगा और अब वो मुझे डंक नहीं मारेगा. तो नन्ही ने बिच्छू की जान बचाई, फिर से जान बचाई. तो बिच्छू जो है वो अपने स्वभाव के कारण वो फिर से डंक मारने के लिए भी नन्ही को आगे बढ़ा. तो नन्ही उसका इरादा समझ गई और हंसकर बोली कि बिच्छू भाई क्यों अटक गए, डंक मारो. तो बिच्छू शर्मा जाता है और वो उसे डंक मारता नहीं है. वो कहता है कि
मैं हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात करता हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों बचाती हो? तो नन्ही बोली कि भला करना मेरा स्वभाव है। मैं बदले लेने तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है तो मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी, और तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम डंक मारते रहो। देखते हैं कौन जीतता है। बिच्छी को बाद में बहुत पछतावा होता है, और वो बोलता है कि नन्ही, मैं अब के बार किसी भी निर्दोष प्राणी को डंक नहीं मारूंगा। और नन्ही वहां पर खुश होकर नदी में चली जाती है। फिर से माँ पूछती है, बेटी क्यों लेट हो गई? तो नन्ही अपनी पूरी घटना अपनी माँ को बताती है, पूरी बात बताती है। और माँ उसे प्रेम से बोलती है कि मेरी नन्ही बहुत समझदार है, और भले लोग जो है वो अपनी बार बार की भलाई से खराब लोगों से भी भला बनाने का मार्ग दिखाते हैं। और नन्ही खुश होकर थिरकने लगी और नाचने लगी। तो चलो, सबको ये लेसन जो है वो समझ में आ गया? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। ચાલો, તો હવે આપણે લેસન 2 નું રિવિઝન કરી લેશું બેટા. हाँ बेटा, लेसन 2 का रिवीजन हो गया। सॉरी, लेसन 1 का. ओके। दयालु शिकारी मैंने अभी सेंड किया ना इंशिया. यस मैम। हाँ चलो, प्रेजेंट करो बेटा. ओके मैम। मुझे पकड़। मैम दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ बेटा. ओके मैम। क्वेश्चन आंसर करो बेटा. ओके ओके, एमसीक्यू से शुरू करो इंशिया. ओके चलो. मैम ये हमें लिखने का है। नहीं बेटा, रीड करना है. कैन आई ओके रीड? मैम। मैं मुस्कान, रीड करूँ? मैं रीड? यस मैम। यस मैम। मुस्कान क्वेश्चन और मुस्कान के नंबर बाद में रीड. मैम मुस्कान के बाद मैं रीड करूँ? अलीना खोलिया। खोलिया अलीना. ओके, मुस्कान के बाद। खोलिया अलीना और उसके बाद ये पूरा तैयारी मैम। शिकारी का पाठ है ना, पूरा पाठ है. तो एक आंसर की है. मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो. हेलो। यस मैम। यस मैम। मुस्कान, यस। एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर तीनों दयालु शिकारी के. और ओके मैम। मुस्कान के बाद कौन बनेगा? अलीना खोलिया. मैम ओके मैम। यस मैम। ओके चलो मैम। मुस्कान. अलीना। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1। 15 मिनट है. मैम अभी रीड करूँ मैं? हाँ मुस्कान. यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1। जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी हिरनी, ऑप्शन सी लोमड़ी, ऑप्शन डी सियारिन। आंसर इज ऑप्शन बी हिरनी। नंबर सेकंड। शिकारी एक डैश के पीछे छिप गया। ऑप्शन ए झाड़ी, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी खंबे। आंसर इज ऑप्शन बी पेड़। नंबर थर्ड। हिरनी निशाने की डैश में आ गई। ऑप्शन ए सीध, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी
ताक, ऑप्शन डी पहुंच। आंसर इज ऑप्शन ए सिद्ध। नंबर 4, पशु पक्षी के बच्चे को डैश कहते हैं। नंबर ए पिल्ला, ऑप्शन बी मेमना, ऑप्शन सी शिशु, ऑप्शन डी शावक। आंसर इज ऑप्शन डी शावक। नंबर 5, डॉक्टर ने घाव पर डैश लगाया। ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी मरहम, ऑप्शन डी तेल। आंसर इज ऑप्शन सी मरहम। मैम कैन आई रीड मलिक ताहिर? मैम मैम कैन आई एमसीक्यू रीड रीड कर कश्मीरी लिए। सवाल? ये एफबी रीड करनी है अल्पा मैम? बेटा मैंने पूरा बोला था। यस मैम। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, शिकारी के पास एक डैश थी। आंसर बंदूक। नंबर 2, शिकारी शिकार करने के लिए डैश में गया। आंसर जंगल। नंबर 3, शिकारी ने एक डैश हिरनी देखी। आंसर मोटी ताजी। नंबर 4, शिकारी को बहुत डैश हुआ। आंसर पछतावा। नंबर 5, डैश से हिरनी को आराम मिला। आंसर इलाज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, शिकारी जंगल में क्यों गया था? आंसर शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। नंबर 2, हिरनी देखने में कैसी थी? आंसर हिरनी देखने में मोटी और ताजी थी। क्वेश्चन नंबर 3, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? आंसर हिरनी को टांग में गोली लगी थी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? आंसर हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? आंसर शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। क्वेश्चन नंबर 6, हिरनी को आराम कैसे मिला? आंसर डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। क्वेश्चन नंबर 7, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसे व्यवहार किया? क्यों? आंसर शिकारी ने हिरनी के साथ दया पूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? ओके क्या हूँ मैम? कैन आई रीड मलिक ताहिरा? हाँ मैम मलिक कैन आई मैम रीड ताहिरा ने इट्स सीतेरा? माय टर्न। अलीना अलीना खोलिए। खोलिए अलीना। यस मैम। मैम आफ्टर अलीना कैन आई मैम रीड मैं शेख भी मेहरीन? मेहरीन। आफ्टर मलिक ताहिरा। मैम मैं बातूनी कछुआ रीड करूँ के ये जो मुस्कान ने रीड किया वही रीड ये करूँ? जो रीड किया मैम मैम अलीना के बाद मैं रीड करूँ मेहरीन? करूंगी मलिक ताहिर। मैम कैन आई सैयदा? अलीना के मैम बाद मेहरीन। अलीना के बाद मैम मेहरीन। ओके मैम। मैम अलीना मैम खोलिए। आफ्टर आई सैयदा? हाँ बेटा। मेहरीन आफ्टर कैन आई आफ्टर महरीन मैं सैयदा। हाँ बेटा टाइम रहेगा तो कर। मेहरीन मैं कुलसुम।
मैम महरीन के बाद मैं रीड करूंगी सैयदा। के बाद चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रत्यय के प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही चुनिए। नंबर 1 जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। नंबर ए हिरनी, बी बकरी, सी लोमड़ी, डी सिया सियारिन। सियारिन। नंबर ए हिरनी। नंबर 2 शिकारी एक डैश के पीछे छिप गया। ए झाड़ी, बी पेड़, सी पहाड़ी, डी खेभे हभे, डी पेड़। नंबर 3 हिरनी निशाने की डैश में आ गई। ए सिद्ध, बी दिशा, सी ताक, डी पहुंच। ए सिद्ध। नंबर 4 पशु पक्षी के बीच को डैश कहते हैं, बच्चे को डैश कहते हैं। ए फिलहाल, बी मेमना, सी शिशु, डी शावक। नंबर 5 डॉक्टर ने घाव पर डैश लगाया। ए चूना, बी पाउडर, सी मरहम, डी तेल। सी मरहम। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रेखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 शिकारी के पास एक डैश थी, बंद। नंबर 2 शिकारी शिकार करने के लिए डैश में गया, जंगल। नंबर 3 शिकारी ने एक डैश हिरनी देखी, मोटी ताजी। नंबर 4 शिकारी को बहुत डैश हुआ, पछतावा। नंबर 5 डैश से हिरनी को आराम मिला, इलाज। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। नंबर 2 हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी मोटी और ताजी थी। नंबर 3 शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? हिरनी को टांग में गोली लगी थी। नंबर 4 क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। नंबर 5 शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। नंबर 6 हिरनी को आराम कैसे मिला? डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। नंबर 7 शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी उसकी दिशा देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। दुख हुआ, पछतावा हुआ। नंबर 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 8 यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? हम भी हिरनी को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर मरहम पट्टी करवाते। थैंक यू मैम। ओके। मैम मैम पढ़िए आपका सैयदा। महरीन कहना है कुलसुम। मैम कहना है मलिक ताहिरा। आपने मुझे मलिक कहा ताहिरा, मलिक ताहिरा मैम बातें आपने निकल मुझे मैम कहा था सैयदा। महरीन। मैम मैम मलिक मैम ताहिरा मैम आफ्टर ताहिरा कहना है सैयदा। आफ्टर ताहिरा सैयदा। बेटा लेक्चर पूरो થઈ જશે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मैम आपने मुझे कहा था महरीन गए विकल्पों में से हाँ बेटा। आपने मुझे कहा था महरीन। ओके नेक्स्ट टाइम बेटा। और प्रश्न के समान दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1
जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। हिरनी। शिकारी एक डैश के पीछे गया। पेड़। हिरनी जाने के डैश में आ गई सीध। पशु पक्षी के बच्चे को डैश कहते हैं। डॉक्टर ने घाव पर डैश लगाया। मरहम। कोच में से उचित शब्द चुनकर की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए। शिकारी के पास एक डैश थी। बंदूक। शिकार करने के लिए डैश में गया। जंगल। शिकारी ने एक डैश हिरनी देखी। मोटी ताजी हिरनी देखी। शिकारी को बहुत डैश हुआ पछतावा। डैश से हिरनी को आराम मिला। इलाज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शिकारी जंगल में क्यों गया? शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। हिरनी देखने में कैसी थी है? देखने में मोटी ताजी थी। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? शिकारी की गोली हिरनी को टांग में लगी थी। देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। हिरनी की आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। शिकारी हिरनी डॉक्टर ने इलाज उत्तर के